Ladies and gentlemen, good day and welcome to Surya Roshni Limited Q1 FY26 earnings conference call. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Raju Bista, Managing Director of Surya Roshni Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. Thank you very much, and good evening, everyone. On behalf of Surya Roshni Limited, once again I extend a very warm welcome to everyone for joining us today in call. On this call, we are joined by Mr. B.B. Singhal, CFO and Company Secretary, Mr. Gaurav Jain, who is newly appointed as a CEO of Steel Business, Mr. Vasumitra Pandey, newly appointed CEO for Lighting and Consumer Durable, Mr. Naresh Singhal, Executive Director, Steel Division, and SG, our Investor Relation Advisor. I hope everyone had an opportunity to go through the financial results of today. Moving on to the overall financial performance highlight, we are pleased to share the consolidated performance of Surya Roshni Limited for the first quarter of financial year 26. In Q1 FY26, our consolidated revenue stood at 1,605 crore, down 15% year on year, while EBITDA came in at 83 crore, representing a 48% decline over last year for the same quarter. Our EBITDA margin was at 5.14% compared to 8.37% in Q1 FY25, reflecting the impact of softer commodity prices, muted execution of certain government projects, and seasonal demand factors linked to the early onset of monsoon. In Steel Division, company has implemented the SAP HANA software with effect from 1st of April 2025. However, there were initial disruptions in SAP implementation, integration process, and other teething troubles in April and few days in May also, which resulted the sale loss to the tune of 25,000 to 30,000 metric tons in Q1 FY26, which approximately value about 180 to 200 crore. The steel pipe and steel segment saw headwinds from delayed fund dispersion in domestic project market and raw material price volatility, but the export volumes has grew by 23% year on year, led by strong demand from the Middle East sector. The lighting and consumer durable business deliver a modest revenue increase supported by healthy double-digit volume growth in LED lamps, batten and water heater product category despite pricing pressures in certain categories. While our top line and margin were under pressure this quarter, our diversified business mix, operational disciplines, and healthy order book provide a solid foundation for recovery in the coming quarters. We have continued to invest in strategic initiatives including capacity expansion, product innovation, and brand building. Now, we are a zero debt company with a net cash surplus of 331 crore as of June 30, 2025.
Coming to lighting and consumer durable, in Q1 FY26, our lighting and consumer durable segment posted revenue of 397 crore, up by 3% year-on-year basis, driven by strong volume growth despite industry headwinds. EBITDA stood at 31 crore versus 35 crore last year, with margin at 7.8% compared to 9%. A slight decline due to price erosion in consumer lighting, early monsoon-led demand volatility, and moderated government procurement in professional lighting products. Margins are expected to recover, supported by festival demands, premium product offering, and upcoming launches. In professional lighting, we maintain an order book of about 100 crores. Our pipeline of 2-3 new categories and a diversified product portfolio should help meet FY26 target despite slower government spending. Our 25 crore house domestic wire cable facility in Gwalior plant will launch on the 18th of August this month, targeting about 150 crore in the first year and scaling to about 500 crore in next 2 to 3 years period. For FY26, we maintain in lighting division our double-digit growth guidance with capacity expansion, new product, and alignment with government initiatives. We are well positioned to grow both domestically and internationally, even in lighting also, focusing on premium product category, operational efficiencies, and strong channel engagement. On to the steel pipe and steel division. In the Q1 FY26, our steel pipe and strip segment operated in a challenging environment marked by subdued domestic demand, raw material pricing volatility, and the early onset of monsoon. While revenue stood at 1,207 crore, down 20% year-on-year, while EBITDA declined to 52 crore from 24 crore. EBITDA per ton was 2,922 rupees per ton, lowered by 52% year-on-year basis, mainly due to lower high margin product contribution, inventory losses from steel pipe segment, and muted project demand. Overall volume fell 13% year-on-year, with domestic product segments volume down nearly about 30% due to slower government project execution, funding constraint, and softer API and spiral pipe demand. The monsoon disruption causing buying in trade and actual user segments amid the expectations of further steel pipe softening also weighed on demand. In contrast, export rose by about 23% year-on-year despite geopolitical challenges driven by strong Middle East shipment, including hollow section pipe, aligned with our overseas growth strategy. We closed the quarter with a healthy 750 to 800 crore order book across oil and gas and water, even in export also, including large dia coated pipe order for water infrastructure. Execution of pending order is expected between July to September, adding Q2 and Q3 recovery. Operationally, our cold rolling mill was commissioned in June this year. Although its contribution to Q1 FY26 was minimal to about 6,000 ton during the month, but we'll expand our product range and margin and as volume ramp up. Capacity utilization for overall steel segment was 68% in Q1 and should improve in the coming quarters. Our expansion program is on track. The 60,000 capacity of DFT forming technology mill at Anjar Bhuj will commission by March-April 26.
I am pleased to announce that we have appointed Mr. Surya Kumar Yadav, T20 captain of Indian cricket team, as a brand ambassador, a strong name synergized with that aligned with our brand building push. We continue to invest in publicity and marketing to strengthen our domestic and export presence. Looking ahead, we expect steel prices to remain broadly stable or see a slight uptick with no major downside. GI orders should improve from Q2 as government project pick up with a strong order book, growing export capacity enhancement and brand investment. We are confident that our performance will improve in from Q2 onwards. This was from my side. Now I will request our CFO, Mr. B.B. Singhal, to share his thoughts on the results. Thank you, respected MD sir, and a very good evening to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was 1,605 crore as compared to 1,893 crore. EBITDA and PAT stood at rupees 83 crore and rupees 34 crore as compared to rupees 159 crore and rupees 92 crore respectively. In lighting and consumer durables, for the quarter, the revenue stood at rupees 397 crore as against rupees 385 crore, a growth of 3% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 31 crore and rupees 21 crore respectively. In the steel pipe and strips, during Q1 FY26, the revenue was 1,207 crore as compared to 1,509 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 2,922 compared to rupees 6,065. EBITDA and PBT stood at rupees 52 crore and rupees 24 crore. Improved capacity utilization, working capital optimization and cost rationalization enabled us to become a zero debt company and having cash surplus fund of rupees 331 crore as of 30 June 25. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mr. Viraj from Enigma Investment. Please go ahead, sir. Yeah, hello, sir. Sir, my first question is, in your May 15th and May 14th presentation, you had mentioned that we will grow by more than 20% in the full year. You had also mentioned that our EBITDA looks to be around 5,500. And this is when half the quarter was gone of last quarter. And we did not talk about any disruption from SAP implementation or lower sales coming due to government tightening the budgets. It's just very contradictory when half the quarter is gone and the tone is very different from what the results you have reported. Can you just elaborate how did things change so dramatically, or we just missed completely the slowdown? हाँ, नहीं, आप की बात से मैं सहमत हूँ. जो हमने फोरकास्ट बोला था आपको, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं है. बट प्योरली जैसा मैंने बताया, क्योंकि लाइटिंग डिवीजन के अंदर में हमें SAP ERP इम्प्लीमेंटेशन में इतनी इश्यूज नहीं आई और गो लाइव हमारा 1 अप्रैल से स्टील डिवीजन में था. एंड उसके अंदर में क्योंकि
पाइप डिवीजन में पार्टिकुलरली बहुत सारे प्रोडक्ट मीटर में बिकते हैं, कुछ किलोग्राम्स में बिकते हैं, तो इसके कारण जो है उसको इंटीग्रेशन करने में थोड़ा हमारे को इश्यूज आया, तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा महीना हमारा वॉश आउट हुआ है और वो एक मेनली इश्यू है और उसकी वजह से करीब करीब जो आपने बताया पर टन EBITDA के अंदर में भी करीब 2000 रुपया पर टन के आसपास हमारा जो है फिक्स कॉस्ट बढ़ा है और करीब 1000 करोड़ रुपए 1000 रुपीज पर टन के आसपास जो है हमारी इन्वेंट्री में लॉसेस आया है। ऐसे करके पर टन EBITDA में करीब 6000 के मुकाबले या 5500 के मुकाबले वो 3000 के करीब आया है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी फोरकास्ट किया था, क्योंकि Q2 में भी ऑलमोस्ट आधा टाइम हमारा भी निकल चुका है और जिस तरह का जो है मई के बाद का परफॉर्मेंस चल रहा है, तो हम ओवरऑल साल भर में जो ग्रोथ हमने किया बोला था आपको, हम उतना ही कर रहे हैं और Q2 के अंदर में बहुत सब्सटेंशियल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ EBITDA आपको देखने को मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे साल भर में जैसे 11 लाख टन हमने बताया था, तो उसको मैं स्लाइटली डाउन कर रहा हूँ 10,50,000 टन प्रिसाइजली उसके आसपास हम लोग वॉल्यूम करेंगे स्टील डिवीजन के अंदर में। और साल भर का जो है EBITDA करीब जो मैंने 5500 रुपया बताया था पर टन, वो उतना ही हमारा रहेगा। तो एक तो SAP-ERP के कारण था, दूसरा मॉनसून थोड़ा सा अर्ली था और मॉनसून जब अर्ली हो जाता है तो थोड़ा डीलर नेटवर्क के अंदर के में भी डी स्टॉकिंग हो जाती है और उस हिसाब से जो है ऑर्डर के फ्लो नहीं आते। बट मॉनसून थोड़ा प्री मॉनसून भी अच्छा था, ओवरऑल मॉनसून भी अच्छा है, लेकिन उसका अब एंड रिजल्ट ये आएगा कि एग्रीकल्चर के अंदर में डिमांड क्रिएशन ज्यादा होगा और GI पाइप के अंदर में भी जो है डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर में डिमांड अच्छी जनरेट होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, ओवरऑल जो हमारा कमिटमेंट था वो एज इट इज रहेगा। ये पार्टिकुलरली क्योंकि हमारे हाथ में भी बहुत कुछ नहीं रहता, क्योंकि 2 साल से हम ERP के ऊपर में काम कर रहे थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, स्टील पाइप सेगमेंट के अंदर में हमारी हिंदुस्तान की पहली कंपनी होगी जिन्होंने इतना इंटीग्रेटेड किया और एंड टू एंड जो है हमने 100% उस ERP को इम्प्लीमेंट किया, वो एक सूर्य रोशनी ही है। सर सॉरी, थैंक यू फॉर योर आंसर। सर मैं फिर से ये पूछूंगा कि आप अभी बोल रहे हो कि स्टील में आप 10,50,000 टन कर लोगे और 550 रुपये EBITDA पर टन कर लोगे, तो आप 600 करोड़ EBITDA की अभी भी बात कर रहे हो, जबकि आपका फर्स्ट क्वार्टर में EBITDA जो है वो तो आपके सामने है, मतलब 50 करोड़ से भी कम है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या आप ये 100% बता सकते हो कि Q2 में आपका वॉल्यूम ग्रोथ 20-25%, 30% Y-on-Y ग्रोथ है उस तरीके का? देखिए, मैं अगर ऐसे आपको बताना चाहूंगा एज ए फोरकास्ट, करीब क्वार्टर 2 के अंदर में 35 से 38% के आसपास की हमारी रेवेन्यू में ग्रोथ रहेगी। और 35 से 38%, 35 to 38%। 35 to 38%, आप इसको नोट करना, नेक्स्ट फोन कॉल में फिर आप पूछना। और ओवरऑल जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी आपको जवाब देने से पहले कैलकुलेट करके होमवर्क करके ही बोलते हैं, तो अदरवाइज जो है पिछले 5 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, ओवरऑल जो हमने कमिटमेंट किया उसको फुलफिल किया है और साल भर में 20% से ज्यादा की ग्रोथ सूर्य रोशनी की रहेगी। और जो EBITDA हमने आपको कहा है 590 से 600 करोड़ के आसपास का हमारा EBITDA पूरे साल का रहेगा। राइट सर, सेकंड क्वेश्चन लाइटिंग को लेके है। लाइटिंग में सर हमें लगा था कि जो प्राइस इरोजन था वो लास्ट ईयर कंप्लीट हो गया, बट अभी आप और प्राइस इरोजन की बात कर रहे हैं, जिसके कारण लाइटिंग का भी EBITDA डिक्लाइन हुआ है। उस पर आप थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे कि मतलब ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि आप ठीक पूछ रहे हैं, लेकिन लाइटिंग के अंदर में इतना मेजर अभी वो प्राइस इरोजन नहीं है, लेकिन प्राइस इरोजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो बल्ब सेगमेंट में हो या पैटर्न सेगमेंट में हो। तो इस वजह से हम फास्टली प्रोडक्ट कैटेगरी में जो है चेंज भी करके हम दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी में मूव भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली।
और जो है लाइटिंग डिवीजन के अंदर में इस क्वार्टर में पार्टिकुलरली ये हुआ कि थोड़ा हमारा जो है कॉमर्शियल जो B2B बिजनेस है उसके अंदर में थोड़ी हमारी ग्रोथ अच्छी आई है, उसमें बिक्री हमारी ज्यादा हुआ है, लेकिन उसमें पार्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट के अंदर में थोड़ा मार्जिन्स कम था, इस वजह से उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन साल भर में लाइटिंग डिवीजन के अंदर में भी जो है आपको 180-190 करोड़ के आसपास का EBITDA आपको मतलब पूरे साल का रहेगा एज इट इज, जो हमने पहले भी कमिटमेंट किया था। लेकिन अच्छी बात यह है लाइटिंग डिवीजन के अंदर में पिछले 5 साल में बहुत सारी कंपनियां बनी, कुछ पुरानी थी, बहुत सारे बंद हो गए, चल नहीं पाए, उसके बावजूद भी मार्केट में तमाम तरह की अड़चने हैं, उसके बावजूद भी हमने अपने आप को मेंटेन रखा, हमने अपनी कॉस्ट को कभी बढ़ने नहीं दी और हम रेगुलर इंटरवल पे जो है प्रोडक्ट लॉन्च करते रहे। और हमने अपने सेगमेंट भी जो ओरिजिनली सूर्य रोशनी को बल्ब ट्यूब की कंपनी बोला करते थे, आप उससे जो है मतलब हम काफी हद तक जो है हमने अपने आप को चेंज किया और हमारी डिपेंडेंसी अभी बल्ब और सिर्फ ट्यूब पे नहीं है। इनफैक्ट कन्वेंशनल लाइटिंग की बिक्री तो ऑलमोस्ट बंद हो गई, अब फुल्ली जो है हम लोग रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया, डोमेस्टिक वायर सेगमेंट भी थोड़ा लॉन्चिंग में उसमें भी हमें 2 महीने का डिले हुआ बिकॉज ऑफ लेट अराइवल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो उसका भी प्रोडक्ट शुरू हो गया और 18 सितंबर को हम साउथ से लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका भी करीब 150 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू इस साल में ऐड होगा। तो सर अगर मैं आपका लास्ट ईयर का Q2 का नंबर देखूं, आपका 1530 करोड़ का रेवेन्यू था, मोटा मोटा 35-40% ग्रोथ पकड़े, तो आप बोल रहे हैं 2100 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। और अगर आपको 5500 रुपये, क्या बोल रहे हो सर? 2130 करोड़ करेंगे, करीब स्टील डिवीजन के अंदर में 1650 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहेगा और लाइटिंग में 470 से 480 करोड़ के आसपास का रहेगा। और सर खाली दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर अपने को 5500 रुपया EBITDA पर टन फॉर द फुल ईयर करना है, तो बाकी के तीनों क्वार्टर में 6-6.5 हजार रुपया EBITDA पर टन करना पड़ेगा। ये क्वार्टर 2 में 5500 करना पड़ेगा, क्वार्टर 3 और 4 में 6-6 हजार करना पड़ेगा। तो आप 5500 आप नेक्स्ट क्वार्टर में कर लोगे, आप कॉन्फिडेंट हो इस बात से? हाँ, 5500 प्लस क्वार्टर 2 में ही आपको दिखेगा और बैलेंस क्वार्टर में 6-6 हजार। और हमारे पास जो 1000 टन की जो मैं ऑर्डर बुक बता रहा था, वो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है, जो है इस Q2 के अंदर में भी 1 महीने जाएगा और Q3 के अंदर में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। राइट सर। और सर लास्ट क्वेश्चन यही था कि अभी सर अपनी AGM भी आ रही है, सर एक यही विनती थी, हम 4-5 साल से डीमर्जर की गुहार लगा रहे हैं एज माइनॉरिटी इन्वेस्टर, बट सर मतलब हम वैल्यू ही नहीं क्रिएट कर पा रहे शेयर होल्डर के लिए, जबकि कंपनी ठीक ठाक कर लेती है। बट सर अगर आप प्लीज डीमर्जर का एक प्रस्ताव रख सके तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नहीं, हम ऐसा है कि देखिए मतलब मैं आपकी भावनाओं से एकदम अवगत हूँ और मैं आपकी भावनाओं का इज्जत और सम्मान भी करता हूँ और हम आपकी बात फिर स्ट्रांगली रखेंगे। आप अपनी बात कहते रहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि बोर्ड जो है इस पे जल्दी निर्णय लेगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी साल भर में प्रॉफिट आता है तो हमने यही तय किया है कि आधा शेयर होल्डर के पास जाएगा, आधा कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल में उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो जो कुछ भी कमाएंगे, क्योंकि कैश सरप्लस कंपनी है, 350 करोड़ रुपया कैश सरप्लस है एज ऑन टुडे भी, तो जो कुछ भी है वो शेयर होल्डर का ही पैसा है, चाहे वो मेजोरिटी शेयर होल्डर हो एज ए प्रमोटर या माइनॉरिटी इंडिविजुअल शेयर होल्डर है। सर सो अगर हम नेक्स्ट ईयर जैसे 450-500 करोड़ का पैट करते हैं FY26 में, अगर बाकी सब जो आपने बोला वो ठीक रहा, 400-450 जो भी करते हैं, तो हम 200 करोड़ का डिविडेंड देंगे। आप ये बात मानते हो? हाँ, मुझे लगता है हमने 120 करोड़ तो इसी साल दिया था, आप अगले साल पे क्यों जाते हैं? हम इसी साल देंगे। हाँ, 120 करोड़ हुआ ना सर, मतलब बट आप 50% बोल रहे हो। आप बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है सर, तो अभी Q2 में आपने बोला, Q1 में बोला है सर, आपसे Q4 में वापस ये पूछेंगे। ऐसा है, हम 20% से हमने शुरू किया था, 170% पे पहुंच गए हैं डिविडेंड। नहीं सर, पे आउट की बात है, आप जितना कमा रहे हो उसका कितना परसेंटेज डिविडेंड दे रहे हो उसकी बात है।
120 करोड़ दिया था, आप उम्मीद करिए ना अगले साल क्यों, हम इसी साल आपको 200 करोड़ देंगे। हाँ, इसी साल की बात है सर, मैं FY26 की बात कर रहा हूँ, 27 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। Thank you. The next question is from the line of Mr. Jatin from Swan Investment. Please go ahead. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए हैं, पर मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया था कि जीआई का कंट्रीब्यूशन कम था, तो आप बता सकते हो कि टोटल प्रोडक्ट मिक्स में जीआई का कंट्रीब्यूशन ये क्वार्टर में कितना था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और प्रीवियस क्वार्टर? एक मिनट। 25 ऐसे 25%। लास्ट ईयर कितना था? 27। वो करीब 10% कम था, मतलब 50,000 टन की जगह जो है 40,000 टन था, 10-12% कम था जीआई में। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जैसे सेगमेंट वाइज अगर मैं बात करूं तो FY26 में जैसे ट्रेड का कंट्रीब्यूशन करीब, ट्रेड बिजनेस का स्टील सेगमेंट में करीब 55% रहता है, और ट्रेन सेगमेंट में ही मेजर जो है गैल्वेनाइजिंग पाइप हमारा यही जाता है यहाँ, और एक्सपोर्ट में, और एक्सपोर्ट का करीब 13% है। तो करीब करीब ये 68% के आसपास जो है इस प्रोडक्ट कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जाता है। नहीं सर, पूछने का सवाल ये था कि जैसे आप बोल रहे कि 10% ही कम था, बल्कि ये अपना जो एबिटा पैटर्न हम 2,900 जो दिखाया हुआ है वो मोटा मोटी ब्लैक जो नॉर्मल पाइप बनता है उसका ही है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये क्वार्टर में हमें एपीआई, स्पाइरल और जीआई का कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला? नहीं, ओवरऑल देखेंगे ना तो ओवरऑल जो है हमारा कॉटन इबिटा ही कम रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, वो सभी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे राउंड पाइप का कंट्रीब्यूशन जो है वो 4,000 से घट के 1,800 रह गया, मतलब ब्लैक राउंड की बात कर रहा हूं मैं। और जो गैल्वेनाइजिंग पाइप में जो कंट्रीब्यूशन रहता था हमारा बेटा, वो 7,000 से प्लस रहता था, उसका कंट्रीब्यूशन जो है 4,500 रह गया, 2,500 से हमने वहाँ लूज किया है। तो जो इम्पैक्ट आया करीब 2,500 से 3,000 रुपए पर टन का, वो मेनली जो है क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया तो हमारी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, और 1,000 रुपए के आसपास जो है इन्वेंट्री लॉस भी उसके अंदर में एड ऑन हुआ। और सर दूसरी बात, आपने जो हिसाब से गाइड की है कि नेक्स्ट क्वार्टर Q2 में हम 35 से 38% की ग्रोथ में दिखेगी रेवेन्यू में, तो कहने का मतलब ये है कि इन मंथ ऑफ जुलाई अपनी वॉल्यूम इतनी स्ट्रांग रही है, या मतलब करीबन करीब कुछ वॉल्यूम का गाइडेंस दे सकते हैं कि जुलाई में कितनी वॉल्यूम हुई है और कैटेगरी वाइज? हाँ, नहीं मतलब जो Q2 है, मतलब जुलाई में भी हमारी अच्छी वॉल्यूम रही है, और अगस्त में भी उस हिसाब से सारे प्रोडक्ट कैटेगरी में वॉल्यूम अच्छी है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो है हम लोग 35 से 38% के आसपास जो है वो ग्रोथ आपको ओवरऑल कंपनी एज ए होल दिखेगी। इनफैक्ट स्टील डिवीजन के अंदर में 40% से ज्यादा की ग्रोथ Q2 में ही रहेगी। तो सर मैं वही हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर में करीबन करीब 180 का वॉल्यूम किया हुआ है, अगर Q2 में हम 35% का वॉल्यूम ग्रोथ पकड़ते हैं तो जो हिसाब करीब 30,000 टन क्वांटिटी हमारी कम रह गई, और 190 से 200 करोड़ के आसपास का हमारे रेवेन्यू वहाँ से हमने लूज किया। अदरवाइज आप देखते वो उसको एड ऑन करो तो फिर रिजल्ट अच्छे दिखते। राइट, बट सर अगर हम जैसे गाइडेंस भी मेंटेन कर रहे हैं 10.5 लाख टन की, तो सेकेंड क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट जो आएगा वॉल्यूम में करीबन करीब 40% का रहेगा, अगर मैं प्राइसिंग मेंटेन रखता हूँ तो भी। हाँ, तो क्या है कि गाइडेंस जो 40% का ग्रोथ जो हमने हिस्टोरिकली कभी किए नहीं है सेकेंड हाफ में, और ये सेकेंड हाफ में हम 40% ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं, पॉसिबल है कि हो जाएगा? नहीं, हिस्टोरिकली हमने किया है। इनफैक्ट जो है सेकेंड हाफ के अंदर में वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा रहता है,
डिमांड भी ज्यादा क्रिएट होती है। तो आप निश्चिंत रहिए, Q2 के अंदर में भी करीब 2.5 लाख टन के आसपास का जो है हमारा डिस्पैच रहेगा एज कम्पेयर टू 1.9 लाख टन इन Q1। ओके। और प्रीवियस ईयर में मेरे ख्याल से 1.74 ही था, कम था। और प्रीवियस ईयर तो 1.65 था जो लास्ट सेकंड क्वार्टर में था। तो Q4 में करीब 6 लाख टन के आसपास करेंगे, 6,000 टन। और क्योंकि इसके अंदर में अभी जैसे हमारा 60,000 टन की कैपेसिटी वहाँ पे भी जून में चालू हो गया कोल्ड रोलिंग का भी, तो वो भी एड ऑन करेगा। स्पाइरल की मिल चालू हो गई है ग्वालियर में, वो भी एड ऑन करेगा। और DFT में भी लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट के अंदर में डिमांड अच्छी आ रही है। हमने Q1 में भी करीब 23% के आसपास की ग्रोथ की और 1000 करोड़ का हमारे पास वाटर सेगमेंट और API एक्सपोर्ट के ऑर्डर बुक भी हाथ में है। तो सर जैसे कि हमने जो बताया था, जैसे हमने 180 190 का जो वॉल्यूम किया हुआ है, हमने जब अगस्त महीने में मतलब फर्स्ट हाफ मई में जब ये कॉल किए थे, हमने 10.5 का गाइडेंस दिया था, तभी तो इतना वन ऑफ हमें दिख नहीं रहा था कि ये क्वार्टर में इतनी हिट आएगी। तो व्हाट इज द सिनेरियो दैट वी आर सीइंग इट, हम इतने कॉन्फिडेंस के बोल सकते हैं कि अपना जो Q सेकेंड हाफ है विल बी मच स्ट्रॉन्गर, कि वहाँ पे इतनी कोई हिट नहीं आएगी? नहीं, ऐसा है कि जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहला तो Q1 अनएक्सपेक्टेड था, ERP के कारण इतना हिट करेगा, बट हम इतना आगे बढ़ चुके थे तो उसको हम और फर्दर लिंगर ऑन नहीं करना चाह रहे थे, तो वो एक मैनेजमेंट का कॉल था, हमने स्ट्रिक्टली उस चीज को किया। सो नाउ कमिंग टू Q2, मतलब ओवरऑल जिस तरह का ऑर्डर बुक है या जो नए कैपेसिटी कमीशन हो रहे हैं और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है डोमेस्टिक का बिकॉज ऑफ मॉनसून और एग्रीकल्चर, ऐसा देख करके हमें पूरा उम्मीद है कि जो हम कमिटमेंट का फोरकास्ट करते हैं उसको हम अचीव करेंगे। ओके, मतलब आप जो बोल रहे हो 600 करोड़ का अगर रियलिटी तो वो तो Q2 में जब हम बैठेंगे आने के बाद ही आप मानोगे, बट जो है फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, वो बात तो सही है सर। वो हिसाब से मतलब आप जो हिसाब से आप 600 करोड़ बोल रहे हो, थोड़ा अगर जो Q1 का जो ट्रेंड रहा है और वो हिसाब से हम जो 600 करोड़ का पूरा गाइड कर रहे हैं, समथिंग विच इज लुकिंग मच मोर ऑन द एग्रेसिव साइड, फिर ऐसा ना हो जाए कि स्ट्रांगली जा रहे हैं। हम ब्रांड एम्बेसडर भी लेके आए हैं, हम नए एड फिल्म्स वगैरह भी चला रहे हैं। जो कुछ भी एक बिजनेस ग्रोथ के लिए करना चाहिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। अभी हमको ये थोड़ी ना पता था ट्रम्प 50% पे आ जाएगा टैरिफ पे। ठीक है सर, विल वेट फॉर द Q2 एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Mr. Aditya Pal from MSA Capital Partners. Please go ahead. हाय, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर मेरे काफी सवाल के जवाब तो मिल गए हैं, बट सर एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक सवाल है। अभी जब हम आपकी कंपटीशन को देखते हैं एंड जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जो सबसे बड़ा स्टील पाइप मैन्युफैक्चरर इंडिया का, वो तो उसने तो अच्छा 10% की बढ़ोतरी की YOY। तो मेरा तो ये सवाल है कि वो कैसे, मतलब ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स का डिफरेंस रहेगा, बट वो ग्रो कर पा रहा है, मतलब स्टील पाइप इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है एंड हम लोग ने ग्रो नहीं किया, तो मतलब मोटा मोटी मार्केट शेयर लूज हुआ है। तो हम लोग ऐसा कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वे वी आर थिंकिंग कि हम लोग का बैलेंस शीट पे किसी कॉम्पिटिटर के बैलेंस शीट पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बैलेंस शीट मैं कॉम्पिटिटर का टिप्पणी नहीं करने, मैं सिर्फ सर मैं कॉम्पिटिटर पर टिप्पणी नहीं करने का, मैं बोला अगर वो ग्रो कर पाए जो जिसका स्केल इतना बड़ा है, मतलब इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि हमने ऐसा सोचा है कि हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनसे थोड़ा बात करके बोलना पड़ा है कि हमारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा आगे पिच करो, या हमें नए डिस्ट्रीब्यूटर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ आपको थॉट प्रोसेस है आपका? नहीं, ऐसा है कि रेगुलर बेसिस पे हमारा ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। ऑल इंडिया को मैप करके कहीं भी हम रहता है कि हमारी प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ हम अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं, इसीलिए हम डिफरेंट लोकेशन पे प्लान भी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन क्या है, मैं आपको बताऊं, मैं अब कौन क्या कर रहा है वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं जो हिंदुस्तान की डिमांड है या जो हिंदुस्तान का ग्रोथ है उस हिसाब से हम अपने आप को हमने अलाइन करके रखा हुआ है।
और अगर कंपटीशन में भी आप देखेंगे पार्टिकुलरली सेम सेगमेंट के अंदर में जाएंगे तो उससे पर टन EBITDA एक पार्टिकुलर क्वार्टर को छोड़ दो बिकॉज ऑफ VRP, अदरवाइज आप देखेंगे उसके कंपैरिजन में, उस कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में जो है पर मेट्रिक टन EBITDA सूर्य रोशनी का बेटर ही आपको मिलेगा। नहीं नहीं, ये सब पिछली क्लिप में भी जवाब दे दिया है, वो मैं एकदम सहमति आपके साथ। बट जो मेरा प्रश्न है वो है कि ये क्योंकि ये एक क्वार्टर सूर्य रोशनी स्टैंड लोन में थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्री जब देखेंगे, नॉट जस्ट दैट सिंगल कॉम्पिटिटर बट जो बाकी की कंपनीज भी है उनमें भी काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है। उसमें वही बिकॉज वो तो अप्रैल की वजह से वो वन टाइम हिट था जिसमें 25,000 से 30,000 टन का इम्पैक्ट आया, वही है बेसिकली। आप उसको जोड़ करके देखेंगे सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, तो 2 लाख टन मोटा मोटी आता है फिर। हाँ, वो तो 2 लाख करीब 20,000, 2,17,00,000 टन के आसपास आता। अच्छा, तो मतलब 40-45,000 टन का लॉस हुआ था। 30,000 टन का, अभी 190 है ना? नहीं, 170 था वो। आप हाँ 190, बट क्योंकि मैं EBITDA पर टन से निकाला इसलिए तो 170 आता है। ठीक है सर, तो अगले क्वार्टर देखते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ लक दिखेगा और पूरे साल भर में जो हमारा फोरकास्ट कमिटमेंट था उसको हम पूरा ऑनर करेंगे। नहीं सर, मेरे को देखो मेरा सिर्फ यही है कि आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स है, आपके पास अभी कैपेसिटी भी ऑनलाइन आ रही है। पिछले 4-5 साल में आप देखोगे कैपेसिटी थी नहीं, बट फिर भी आपका EBITDA ग्रो हुआ है। आपका EBITDA पर टन इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो मेरा सिर्फ यही है कि इज इट अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारा ब्रांड है, हम बहुत पुरानी कंपनी है, अभी कैपेसिटी भी ऑनलाइन हो है, तो मतलब कुछ तो है जिधर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के कि वो एक लीवर चेक कर लीजिए। नहीं, आपकी बात सब ठीक है, सब कई जगह हमको बहुत अच्छा प्रीमियम भी मिलता है हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ सेगमेंट है जहाँ पे हम जाते ही नहीं है, जिसके अंदर में जो कॉस्ट की भी रिकवरी बहुत मुश्किल से हो पाती है, तो उस प्रोडक्ट कैटेगरी में हम डील ही नहीं करते। और उसमें क्या है, इतने सारे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी काम करती है, वो हमको सूट ही नहीं करता। तो हम थोड़ा सा जो है जिसमें वैल्यू एडिशन हो, थोड़ा प्रीमियम हो, थोड़ा मार्जिन वाला हो, थोड़ा एक्सपोर्ट हो, थोड़ा API, इन प्रोडक्ट कैटेगरी में ज्यादा करते हैं हम लोग। इस वजह से आपको दिखेगा एक पार्टिकुलरली जो 15 से सेक्शन स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हैं उसके अंदर में कॉस्ट भी मुश्किल से रिकवर होती है, क्योंकि हमको तो सब कुछ कंप्लायंस पूरा करना पड़ता है। तो उसमें कई बार ग्रोथ दिखती है जब स्टील के अंदर में बहुत वेरिएशन गैप रहता है। करेक्ट। ठीक है सर, अगले क्वार्टर देखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी एक्सपेंशन किया है वो भी उन्हीं प्रोडक्ट कैटेगरी में किया है जिसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन हो, थोड़ा मार्जिन और थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी हो। राइट। तो सर साढ़े 10 लाख का तो आप बोलोगे कि आप कॉन्फिडेंट हो ही हो। मतलब मैं अगले क्वार्टर में बोला, अगले जो ये साल का है FY26 10.5 लाख तो आपको लग रहा है कि लॉक्ड इन है। हम इसी बार जो है 2,40,000 से ऊपर करेंगे और अगले 2 क्वार्टर के अंदर में 6 लाख टन के आसपास करेंगे, तो 10.5 के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आपके सब कैपेसिटीज ऑनलाइन आ जाएगी तो आपका Q3 में जो आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगा उसमें अगर आप अच्छे से कैपेसिटी मैपिंग करके दे देंगे हमको बिफोर द FY26 रिपोर्ट, तो वो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा, हम अगले 5 साल का आपको रोड मैप भी रख देंगे इस बार। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जो नया एडिशन होगा प्लांट का, क्योंकि हम रीजनल वाइज जो है कैपेसिटी को एनहांसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्रेट का बड़ा चक्कर हो गया आजकल स्टील पाइप के अंदर में, क्योंकि कंपटीशन हैवी है, तो कहीं भी 1,000-1,200 रुपए से ज्यादा फ्रेट आता है तो वहाँ फिर मार्जिन में प्रेशर आता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ अभी एवरेज हमारा जो है प्राइस जो 1,800 से 2,000 रुपए भाड़ा आता है उसको हम कम करने में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर लेटिंग मी आउट द क्वेश्चन। हमें मोटिवेट करते हो जी। थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Mr. Keshav Garg. But before we take that question, participants, if you wish to ask a question, you may press star and 1. The next question is from the line of Mr. Keshav Garg from Counter PMS. Please go ahead, sir. सर मेरा भी पिछले स्पीकर के लाइन पे ही सवाल था सर। अगर यदि हम देखें जैसे हमारे कंपटीटर श्री हरि ओम पाइप, उनका सर 35% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है,
इसी प्रकार सर और सबका एबिटा पर टन भी सर स्टेबल है। तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्वेंट्री लॉस केवल हम ही को हुआ है। और सर यदि हम जो 200 करोड़ के करीब जो सेल हमारी फोरगो हो गई है वो हम सर जोड़ भी दे तो भी सर मार्जिनल डिग्रोथ ही है। तो सर मतलब बाकी के इंडस्ट्री को हमने फिर भी अंडर परफॉर्म ही किया है। तो सर मतलब और सर अगर ये भी देखा जाए सर पिछले साल भी सर मुझे याद है कि हमने चालू किया था कि 700 करोड़ एबिटा लास्ट ईयर FY25 में हमारा शुरू में वो था एक्सपेक्टेशन। बट सर फिर हमारा Q2 बहुत बेकार आया था तो इसी के कारण सर हम पीछे हो गए। और सर इस पिछले साल आपने इस साल के लिए लास्ट क्वार्टर बोला था 11 लाख टन होगा हमारा वॉल्यूम। सर पहले तो पिछले साल आपने बोला था 12 लाख टन होगा इस साल। फिर सर ये लास्ट क्वार्टर में 11 लाख टन हो गया और अब 10.5 लाख टन हो गया। तो सर यही था सर मतलब कि बार बार यही डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है सर की स्लिपेज हो रही है गाइडेंस पे। तो और सर एक और ये वो है सर कि काफी स्लो डाउन है इकोनॉमी में, जीएसटी कलेक्शन भी नेगेटिव में है आप देखें अगर ईयर टू डेट FY26। तो सर ये सब देखते हुए और जो काइंड ऑफ कैपेसिटी दैट इज कमिंग ऑन स्ट्रीम, तो सर आपको किस कारण से लगता है कि हम लोग वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू आर प्लानिंग टू अचीव? एक तो जो गाइडेंस के अंदर में थोड़े नंबर्स मीट नहीं होते उसका बहुत बड़ा रीजन हमारे केस में तो ये है कि कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे पाइपलाइन पे थे वो थोड़े डिले हुए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, इंक्लूडिंग जो भुज के अंदर में एक API की मिल आनी थी या जो स्पाइरल की मिल वो भी करीब 2 महीने से डिले हुई। और बहादुरगढ़ में जो कोल्ड रोलिंग में हमने करीब 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी कुछ डिले हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे वो जो हमारे हाथ में नहीं था। दूसरा आपने जो बताया कि जिस कंपनी का आप नाम लेकर के आपने बताया एग्जाम्पल दिए 1-2 कंपनी के, देखिए क्या है कि ज्यादातर आप कंपनी देखेंगे जो मिक्स टाइप के हैं जिसमें थोड़ा डोमेस्टिक ट्रेड भी है, गवर्नमेंट का भी API सब है, उसके अंदर में सब जगह ऑलमोस्ट फ्लैट डिग्रोथ ही है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हुई नहीं है। और जिस कंपनी का पार्टिकुलरली आपने नाम लिया जितना मुझे जानकारी में है उनका ज्यादातर ट्रेड सेगमेंट ही है और उसमें भी जो है जो पतरा सेगमेंट है जब वो सस्ता होता है तो वो माल ज्यादा बिक जाता है, वो सब कुछ सारा उसमें कोई ब्रांड तो चाहिए नहीं है, वो सब कुछ जो है प्राइसिंग के ऊपर में जो है वो माल बिक जाता है। तो ऐसा एप्पल टू एप्पल मुझे लगता है कंपैरिजन करना मतलब ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। और हमारे केस के अंदर में जैसे मैंने बताया बिकॉज ऑफ ERP के कारण ही एक वन टाइम हिट हमको लगा है और जिसको हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि उसको हम मीट आउट करेंगे जो हमारे गाइडेंस थे उसको। सर तो स्टील पाइप सेगमेंट में अपने क्लोजेस्ट कंपटीटर आप किन कंपनियों को मानते हैं? नहीं है वो तो आप APL है, आपका जो है जिंदल है और हाईटेक है, ऐसे मतलब कंपनियां हैं 3-4 कंपनियां, लेकिन इन सब में भी एप्पल टू एप्पल तो नहीं है। हम लोग थोड़ा बाकियों से थोड़ा अलग कैटेगरी में है जहां हमारा ट्रेड बहुत स्ट्रांग है जिसमें करीब जो है हमारी 55% के आसपास की जो है हमारी सेल ट्रेड से आती है और एक्सपोर्ट भी करीब 15% के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट है और बाकी जो है API और हाई वैल्यूएटेड प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो ऐसा ये तीनों कैटेगरी में मतलब सब्सटेंशियली जो है जिसकी प्रेजेंस है ऐसे बहुत फ्यू कंपनीज है। राइट सर। जो है आप APL अपोलो से हमको काफी हद तक कंपेयर कर सकते हो। राइट सर। सर और आखिर में सर कुछ चीजें तो हमारे हाथ में होती नहीं सर, जैसे कि स्टील प्राइसेस, जो इकोनॉमी में डिमांड है और इंडस्ट्री में कितनी सप्लाई आ रही है, ये सब चीजें तो सर हमारे हाथ में नहीं है। बट सर डीमर्जर तो आपके हाथ में है। तो सर यदि अगर उसमें कोई प्रगति हो उस ओर तो सर सबका ही भला हो जाएगा सर। तो कृपया इसके बारे में सर कुछ सोचिए। नहीं, CFO भी सुन रहे हैं, हमारी पूरी टीम सुन रहे हैं और जो है मैं भी ये मानता हूं कि अब कंपनी दोनों जो है एक 600 करोड़ का EBITDA, एक करीब 190-200 करोड़ का EBITDA की तरफ बढ़ रही है। तो 800 करोड़ का EBITDA और जो है कैश सरप्लस और जो है जिसकी ब्रांड वैल्यू भी है 2 लाख 2.5 लाख दुकानें देश भर में है
मुझे लगता है ये इससे अच्छा राइट टाइम नहीं हो सकता है, बट देखिए इससे भी एक बेटर टाइम आएगा। मुझे तो जो लगता है जो भी देरी हो रही है उसमें शेयर होल्डर का ही भला हो रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर और बेस्ट ऑफ लक। जी, Thank you. The next question is from the line of Mr. Neil from Equitree Capital. Please go ahead. हेलो। Yes, sir. Please go ahead. हाँ सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस। वैसे तो मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है। मेरा एक छोटा सा सवाल था, तो पिछले कुछ 4 सालों से देखे तो जो हमारा एबिटा पर टन है फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, वो जीआई पाइप हो या एपीआई और ब्लैक पाइप हो, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई दे रही है। ब्लेंडेड बेसिस पे दिखाई दिया तो समझ आता है, बट हर एक कैटेगरी में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। 4,600 करोड़ से कभी 7,700, कभी उससे नीचे 5,500। तो ये वेरिएशन इतना क्यों आ रहा है? नहीं, ये सब कुछ क्या है बॉस, हम क्या कन्वर्टर है, हमको 80 से 85% का माल तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है स्टील, जो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वॉलेटिलिटी ज्यादा है। आप इसमें बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और उसकी वजह से इतना फ्लक्चुएशन आता है। तो एचआर कोल का प्राइस देखेंगे, कभी 70 रुपए हो जाता है, कभी फिर 45 रुपए में आ जाता है, फिर 50 रुपए आ जाता है, अभी 49-48 के आसपास चल रहा है। तो मेजरली उसकी वजह से है। लेकिन आप ओवरऑल हमारी कॉस्ट आप देखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, तो उसको हमने समहाउ मेंटेन करके रखा हुआ है, जो हमारे हाथ में रहता है, और एफिशिएंसी वगैरह जो हम मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपका जो प्रश्न था, मेनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली इसमें इतना बड़ा वेरिएशन आ जाता है। ओके ओके सर, धन्यवाद। Thank you. Participants, if you wish to ask a question, you may press star and 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Mr. Raj Mehta from Raj Mehta Associates. Please go ahead. सर, मुझे ये जानना था कि आपने गाइडेंस तो आप बोल रहे हो कि आप अचीव कर पा रहे हो, बट क्या ये गाइडेंस आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा कंजर्वेटिव बेसिस पे आप बता रहे हो कि आप थोड़े अग्रेसिव हो? फर्स्ट ये पूछना था। और दूसरा, इन केस जैसे Q1 में स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम था, मॉनसून जल्दी आ गया था, तो उसके वजह से थोड़ा डिलेस चल रहे थे। तो अगर Q2, Q3 में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग पिकअप ना आए तो अब तो हम क्या बेसिस पे या कहाँ पे हमारा ग्रोथ अटक सकता है, उसका क्या क्या रिस्क है अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स में, आप उस पर थोड़ा गाइड करो तो बेटर पड़ेगा सर। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसा है कि बहुत एग्रेसिव भी नहीं है, और मैं एकदम बीच का बताऊंगा, जो एक्चुअल जो हमें दिखता है उसके हिसाब से मैंने गाइडेंस दिए हैं आगे फ्यूचर के। और जब हम आपको गाइडेंस देते हैं तो हमारे लिए वो और कमिटमेंट बन जाता है। और दूसरा, जहाँ तक आपने बताया कि जो आगे का जो रोड मैप हम बता रहे हैं या जो गाइडेंस बता रहे हैं, वो बेसिकली जो एक्सपोर्ट के अंदर में जो ग्रोथ आएगी और जो करंट ऑर्डर बुक है हाथ में, उसको देख करके मतलब हमने ये गाइडेंस, ये नंबर्स आपको बताए हैं, और मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और स्टील प्राइस के अंदर में भी मुझे लगता है अब इससे ज्यादा मतलब नीचे जाएगा, ऐसा मुझे इमीडिएट अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर में नहीं लगता। सर, जो ऑर्डर बुक आया है वो क्या यूएस बेस्ड है या नॉन यूएस बेस्ड है? बिकॉज बहुत सारे जगह बिकॉज ऑफ टैरिफ अनसर्टनिटी लोग ऑर्डर्स को क्लोज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऑर्डर्स देने के बाद एडवांस दिया रहता है तो उसको कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज सबको क्लैरिटी चाहिए। ग्लोबली क्लैरिटी तो देखिए नहीं है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकुलरली 5 सिटी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में हमको सीबीडी में करीब 2.3% के आसपास ही ड्यूटी लगी थी, जो बाकियों के ऊपर में 20%, 22%, 25% तक था। खैर वो अभी भी हमारे साथ है, लेकिन उसके अलावा अब 50% स्टील में तो ऑलमोस्ट सभी कंट्री के साथ अमेरिका के वही टैरिफ है। सो अभी भी हम उस पार्टिकुलरली एक प्रोडक्ट कैटेगरी में जहाँ हमें सीबीडी कम आया है, उसके अंदर में तो हमें अभी भी वो गेन दिखता है। बट जो सेक्शन 232 या जो भी टैरिफ 50% है,
अब उसकी वजह से अनसर्टिनिटी ज्यादा है, तो मतलब यूरोप या बाकी अन्य देशों से भी बहुत एग्रेसिवली ऑर्डर या इंक्वायरी जनरेट हो रही है, ऐसा अभी थोड़ा कम दिखता है। हालांकि मिडिल ईस्ट और ये सब सेगमेंट इस एरिया में ठीक है। सो यूएस के साथ डायरेक्ट हमारा बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जब लास्ट ईयर हमको जो एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में हमको काफी अच्छी हमको राहत मिली थी, उसकी वजह से हमें उम्मीद थी कि अमेरिका में हम अच्छा करेंगे। वो मुझे बहुत होता हुआ ऐसा इमीडिएटली दिखता नहीं है। हालांकि हमने Q1 के अंदर में 2000 टन के आसपास जो है वॉल्यूम भी किया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली ये सब क्राइसिस शुरू हो गया। अब थोड़ा सा इंक्वायरी वगैरह भी बंद है, तो ये है। बट मुझे लगता नहीं कि देखिए बहुत हिंदुस्तान हम एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री तो नहीं है। वो बात ठीक है, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है 3 लाख करोड़ के आसपास का, लेकिन हमारी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग है। एक्सपोर्ट बेस्ड हमारी कंट्री नहीं है, और जो है लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान को इसकी वजह से बहुत बुरा असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। इमीडिएटली हाँ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अभी फार्मास्यूटिकल में भी फिर 75% एडिशनल बोल रहे हैं ट्रम्प साहब, तो इस वजह से है। अब ये देखिए कब तक चलता है। होपफुली शायद कुछ डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। ट्रम्प रशिया से मिल रहे हैं, फिर रशिया हिंदुस्तान में आ रहे हैं, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शायद वहाँ भी जा रहे हैं। ट्रेड का डायलॉग अभी भी शायद ऑन है। तो ये सब तो अभी वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि Q1 में जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ आया है वो प्रीडोमिनेंटली वो किसी को इन्वेंट्री बिल्डअप करना था जस्ट बिकॉज टैरिफ के आने के चांसेस ज्यादा थे, और वो सस्टेनेबल डिमांड नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी टैरिफ का इशू नहीं है, उसमें कोई टैरिफ का इशू नहीं है। इनफैक्ट अभी तक जो है मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में अच्छी ग्रोथ है, और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया इन सब के अंदर में भी ऐसी कोई मतलब इस तरह का दिखता नहीं है। और सारे ये जो भी एक्सपोर्ट हुआ है नॉन यूएस कंट्री में ही हुआ है हमारा, और ग्रोथ भी वहीं से है। ओके। एंड सर मैंने जो डोमेस्टिक के रिगार्डिंग पूछा था कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो लास्ट आई थिंक 3-4 क्वार्टर से थोड़ा स्लो डाउन ही हो रहा है, उतना अग्रेसिवली गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ नहीं रहा है, और ये क्वार्टर में भी अपने को गवर्नमेंट स्पेंडिंग के वजह से वो किकबैक नहीं मिला था ग्रोथ में। हम आगे कैपेसिटीज भी डाल रहे हैं, तो कैपेसिटीज भी अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए ऑप्टिमल कैपेसिटी पे तो हम ब्रेक इवन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोई भी डोमेस्टिक रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं दिख रहा है फ्यूचर में? नहीं, ऐसा पार्टिकुलरली बहुत ऐसा मतलब नजर आए ऐसा तो कुछ नहीं है, बट फिर भी हमारे पास कुछ एपीआई के ऑर्डर हैं, कुछ एपीआई ऑर्डर पाइपलाइन में भी है, टेंडर स्टेज पे भी है, और वाटर पाइप सेगमेंट के अंदर में जो है डिमांड है, और जहाँ पे स्पाइरल और छोटे साइज के पाइप भी हम लोग जो है उसमें बेच रहे हैं। सो ऐसा हिंदुस्तान में ये बात ठीक है कि थोड़ा डिले हुआ है, स्पेंडिंग थोड़ा कम हुआ है, या उसको डिस्पर्सन में टाइम लगा हिंदुस्तान मतलब भारत सरकार को, लेकिन मुझे लगता नहीं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो है उसको जो हमारा करंट ऑर्डर बुक है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है हम वो जो हम बोल रहे हैं उसको मीट आउट कर लेंगे। और सर कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है जब आपको इतना ऑर्डर बुक मिलता है तो उसका कैंसलेशन होने के चांसेस, आपका जो ऑर्डर बुक रहता है उसमें कितना परसेंटेज आपको रिस्क लगता है कि वो कैंसिल हो सकता है? मैं 2012 में एमडी बना था, कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। आज तक कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ मेरी जानकारी में अपेरेंटली नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और जहाँ तक एक्सपोर्ट और ये सब है, मतलब एपीआई के भी जो टेंडर होते हैं, मतलब इतने लार्ज कंपनी और ये सारे पीएसयूज हैं, तो हम भी उसको पूरा ऑनर करते हैं और उनके साइड से भी पूरा उसको ऑनर करते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब हम टेंडर कैंसिल हो जाएगा वाला सिचुएशन एटलीस्ट हमारे केस में तो नहीं है। एंड सर मुझे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि आप आपने जैसे कॉम्पिटिटर है एपीएल अपोलो, उन्होंने भी एक क्वार्टर में अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ किया था, और उन्होंने भी एक दुबई में उन्होंने कैपेसिटी को एक्सपांशन किया है।
तो अगर हम भी मिडल ईस्ट में सप्लाई कर रहे हैं तो अपना जो मार्केट शेयर है और एक्सपोर्ट में धीरे धीरे क्या वो एपीएल अपोलो लोअर एंड पे लोअर प्राइस पे वो कैप्चर कर सकते हैं कि हमको उसका अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है कि हमको उतना जो ग्रोथ हम लोग ने एक्सपेक्टेड किया था मिडल ईस्ट के एरिया से वो थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है? ऐसा है कि एक तो हमें मिडिल ईस्ट का जो लोकल मार्केट है ना उसमें बहुत कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, क्योंकि 6 महीना का जो है वहाँ पे क्लीन क्रेडिट देना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, हम गुजरात एक्सपोर्ट बेस हमारी यूनिट है, जहाँ का भाड़ा जो है यूएई में किसी भी जगह बना करके दुबई जितना लाने में भाड़ा लगता है उतने में हम पहुँच जाते हैं। तो मतलब वहाँ होने नहीं होने से ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आज भी जितनी हिंदुस्तान की सब कंपनियां मिला करके एक्सपोर्ट करती है आरडब्ल्यू सेगमेंट में, उससे ज्यादा अकेली सूर्य रोशनी करती है, बिकॉज हमारा इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस है, हमारी रिलेशनशिप है और हमारी वो क्वालिटी आज तक हमने उसको मेंटेन किया है। और प्योरली बहुत सारे देशों के अंदर में मतलब सूर्य रोशनी ही डोमिनेटिंग प्लेयर है। ओके। एंड सर, आप कुछ कॉम्पिटिटर से कुछ लर्निंग्स आप अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि इनकी जो पेस पे उन्होंने जो ग्रो किया है लास्ट 4 इयर्स में और उनकी जो लर्निंग है इंडस्ट्री की, ऐसा कुछ अपने को लगता है कि हमको वो चीज को इम्प्लीमेंट करके हमको अपना थोड़ा ग्रोथ को अग्रेसिवली बिल्ड करना चाहिए? मैं आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और हर एक कंपनी की अपनी यूएसपीज होती है, बट एक दो चीज डेफिनेटली हमारे केस में भी वो लागू होती है। जैसे हमारा यूनिट जो है प्रेजेंस नॉर्थ में है, गुजरात में है, बेंगलोर में हमने अभी लगाया। उसके अलावा बाकी पूरा ईस्ट और आपका जो है सेंट्रल इंडिया या वेस्टर्न बॉम्बे महाराष्ट्र साइड में हमारी प्रेजेंस नहीं है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ ही हमने एक चीज देखा कि अगर हम भले ही छोटी कैपेसिटी में अगर एचआर कोल बना सकते हैं तो हमारे लिए वो बहुत लाभदायक होगा, फ्रूटफुल होगा। तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ये अभी कुछ भी बोर्ड में डिस्कस नहीं हुआ। हम अपने लेवल पे हम लोग इसके ऊपर वर्किंग जरूर कर रहे हैं और जो आदमी सीखता है आगे तो वही बढ़ता है। ओके सर, ऑल दी बेस्ट एंड आई होप कि आपने जो गाइडेंस दिया है आप उस पर निर्भर रहो और मार्केट उसको अप्रिशिएट करे। Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, that was the last question. I would now like to hand the conference over to Mr. B.B. Singhal for closing comments. Thank you everyone for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank our MD sir and the CEOs for sparing their valuable time addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, contact SGA, our investor relation advisor. Thanks. Good evening once again. Thank you, Jay. Thank you very much.